Hello, Assalamu alaikum, and greetings everyone. Hope you're all doing well. First of all, thank you for joining us today for this webinar organized by IEEE PAF GATE and IEEE University student branches of 2021. We are extremely overwhelmed to have you all here with us today. I am Sauda Anil, Vice Chairperson at IEEE PAF GATE Student Branch 2021 and 2022, and I'll be your host for this event. And on behalf of IEEE PAF GATE and IEEE Hamdard University Student Branch, I humbly welcome you all to this webinar. Mr. Sajjad Hussain is a teacher, trainer, and student counselor, and currently serving as assistant professor at PAF GATE University. He has taught both engineering and management students at the undergraduate and master's level. He has been associated with NED, IOBM, and Zabist universities, where he has taught project management, professional and social ethics, technopreneurship to the undergraduate students, and global communication industry and policy, business information and technology management at the master's level. He has also been associated with BISTEC and PIMSAT, where his core subjects were operations management and service marketing. As a training facilitator, he has conducted a number of orientation sessions for visa-ready immigrants proceeding to Canada from the platform of International Organization for Migration. He has also conducted guest speaker sessions at various institutes of higher learning. Mr. Sajjad Hussain has bachelor's and master's degrees in electrical engineering from NED University and has done course on the project management from McGill University, Montreal, Canada. In addition to this, he has a practical work experience of over 15 years of working with organizations like KECS, Siemens Pakistan, DHA Kogan, and World Call in various responsible positions. Thank you very much, sir, for joining us today. Before we begin, all our participants are requested to keep your mic turned off during the entire session. We will have a question and answer session at the end in which you can raise your hand and the host will give you the opportunity to ask your questions. You can also send your questions or messages to the host through the chat with your name and affiliation at the end. Now, without further ado, we'll hand over the control to our most esteemed speaker, Mr. Sajjad Hussain. Assalamu alaikum, and thank you very much, Navira Sauda, for giving me an opportunity to be part of this webinar today. I'm extremely delighted to address you guys. Uh, I think I will be conducting this session in both the languages. Although I'm very comfortable in talking to you in both the languages, there is no issue as such. But for the sake of making you understand each and every part of the webinar, it is better to opt the two languages. Uh, let's begin the session before it's too late now. We already have like a healthy participation. Almost 70 students are joining in this session today. This is a very good sign that you guys are taking interest in forging ahead with your future career. Let me begin the session. This is about techniques of writing an effective resume using the STAR method. Before we move on, let me put a disclaimer that the pictures which I have made use of in this presentation have been taken from pixabay.com, and the material has been taken from this web link which is given here. The webinar will be posted on YouTube immediately after the session is over, so you can review the webinar at your own convenience. So the topic of our discussion today is techniques of writing an effective resume using the STAR method. You must be wondering what STAR is all about and what exactly it is going to make difference, what we have been doing up until now. Let me tell you, this is my name, Sajjad Hussain. I'm assistant professor at Karachi Institute of Economics and Technology. There is my email address given at the end.
You can contact me even after the seminar webinar is over, and for any queries related to your future career path and everything. We are going through a harsh time in our life nowadays for the last 1 year, that is COVID-19. और इसमें जो जॉब का जो पूरा सिनारियो है वो यकसर तब्दील हो गया है. Previously, we used to get advertisements on in the newspaper, but now almost all the jobs are available only on through the internet. So, and most of the jobs available currently are mainly focused on home-based jobs. So, because you will not be confronting your prospective employer by face, तो जब आप प्रैक्टिकली अपने एम्प्लॉयर के सामने जब नहीं हैं, तो अब आपको अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है टू गेट द जॉब is something which we are going to learn today. And hopefully by the end of this webinar today, you will be able to have some confidence in your own self to compete with your uh, classmates or fellow beings across Karachi or Pakistan maybe. So let's get to it. जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जॉब की सर्च के लिए, उसमें सबसे पहली चीज है जी आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो है आपका रेज्यूमे. और रेज्यूमे हैज टू बी रॉक स्टार. रॉक स्टार क्यों? इसलिए कि अगर एक जॉब एडवर्टाइज होती है तो ट्रस्ट मी, नाउ डेज जो हमारी सिचुएशन है उसमें you can you would be competing more or less more than 100 people coming in for one job. अब उसमें और फिर जब वो भी अगर ऑनलाइन सारी सिचुएशन है तो उसमें it is very difficult for the employer as well to identify the right person. और उसमें आपके एंड पे जो जो अप्लाई एम्प्लॉई है या जो एप्लीकेंट है उसके एंड पे चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, इन द सेंस दैट यू हैव टू शाइन. और शाइन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है नॉर्मली वो स्टार का वर्ड यूज़ होता है. सो दैट इज़ द टेक्निक विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. अच्छा, इसके साथ अगर आप इसी पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको अगर इंटरव्यू कॉल आनी है तो उससे पहले जो चीज़ें आपने करनी है वो है जी आपको रॉक स्टार रिज्यूमे लिखना है प्लस कवर लेटर लिखा हुआ है इसके साथ. उसके बाद उसने कहा कि जी अब यहाँ जो कवर लेटर लिखा है तो व्हाट डज इट मीन? कवर लेटर की क्या ज़रूरत है? अगर मुझे जब जॉब अप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि जब आप किसी की बर्थडे पे जाते हैं तो या किसी शादी में जाते हैं तो जो आप अपना गिफ्ट जो लेकर जाते हैं वो ऐसे ही उठा के नहीं दे देते अपने जिसकी बर्थडे हो या जिस शादी में जा रहे हैं तो उसको आप ऐसे ही उठा के इवन कैश की सूरत में भी अगर हो तो आप उसको कवर में डालते हैं. एग्जैक्टली यही चीज़ आपको यहाँ भी अप्लाई करनी होती है. इसके लिए मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड यूज़ होता है, एक फ्रेज यूज़ होता है, वो कहलाता है जी कि जो दिखता है वो बिकता है. तो बिकॉज यू आर गोइंग टू सेल योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर एम्प्लॉयर, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, तो अब आपको उसके लिए दिखना भी बहुत ज़रूरी है और अच्छा दिखना ज़रूरी है. तो उसके लिए आपका जो कवर लेटर है वो उतनी ही उसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है. उसके साथ उसने आपका जो रिज्यूमे है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और अटैच होके जो आपकी जॉब है, जो नेचर ऑफ जॉब है उससे रेलेवेंट एप्लीकेशन है नहीं है, और अगर है तो
how are you going to be considered for the job, उसमें फिर थोड़ा बहुत जो है वो लक का एलिमेंट भी शामिल होता है। बिकॉज होता ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही प्रिपरेशन के साथ भी जाते हैं, बट एट द 11th आवर अगर आप से कोई एक थोड़ी छोटी सी भी भूल चूक हो जाती है तो यू हैव टू पे द प्राइस। और वो जो प्राइस होती है इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल प्राइस, इट इज़ लाइक लूजिंग अ जॉब। सो लैंडिंग द इंटरव्यू is at a very later stage। और उसके लिए फिर at the end of this webinar today I'll be showing you one video which I have made myself. It will give you a very fair idea as to how to prepare yourself for the interview as well. So it is going to be a complete consolidated package, right from covering letter up until the end of landing into an interview and getting the job. So लेकिन जो इसमें पूरा जो हमारा फोकस है इस पूरी एक्सरसाइज में वो है हमारे इस एटीट्यूड या बिहेवियर के ऊपर कि हाउ आर वी गोइंग टू बिहेव इन द इंटरव्यू एंड रिज्यूमे एंड कवर लेटर एंड ऑल दैट। सो उसमें आपने अपने आप को शाइन करना है और उस शाइनिंग के लिए जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ द स्टार मेथड ऑफ राइटिंग एन इफेक्टिव resume. I'll give you my personal life experiences during this whole presentation as well, so that you get an idea how effective you can make yourself, or how effectively you can present yourself in front of your prospective employer. So let's move on. So this is about cover letter. अब जो मेरे ख्याल से आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए इस पे, वो सवाल ये है कि अगर एक रिज्यूमे जब हम भेज ही रहे हैं तो कवर लेटर की क्या ज़रूरत है, और अगर कवर लेटर है तो उसको उसके लिए पूरी मतलब ये एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है कि हम उसकी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी जानें। हम सिंपली एक दो लाइनें लिख के भी तो अपना कवर लेटर भेज सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि कम्युनिकेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो दिस जॉब सर्चिंग एक्सरसाइज इज प्योरली फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब कोई चीज़ फॉर्मल होती है तो यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी विच यू आर गोइंग टू कंडक्ट। जिस तरह से प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर जब ट्रेवल करते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि जी पहले कौन आएगा और फिर कौन आएगा, फिर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है वो किससे हाथ मिलाएगा और किससे सिर्फ हेलो हाई करनी है, किस तरह से उसने अपनी सीट तक जाना है, फिर वहां पर बैठना है, कब वो जो है वो खिताब करेंगे, और ये सारे प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। तो इसी तरह से जो जॉब हंटिंग का जो प्रोटोकॉल है उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो तो ये है कि जी एक एडवर्टीजमेंट आपने देखनी है, आपने देखने के बाद उसमें अपनी रेलेवेंस चेक करनी है कि जो स्किल सेट्स वहाँ पर डिमांड की जा रही है वो स्किल सेट्स आपके पास हैं या नहीं है। और अगर वो हैं तो अब आपको उसे किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है सो दैट यू शाइन एंड गेट कॉट बाय योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। तो उसके लिए जिस तरह से गिफ्ट के लिए भी मैंने बताया था कि आपको उसको कवर में रैप अप करना होता है, इसी तरह से आपका जो रिज्यूमे है उसको जो चीज़ रैप अप करेगी वो है आपका कवर लेटर। कवर लेटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि जैसे रिज्यूमे जो होता है बेसिकली उसमें तो आप अपने जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, लेकिन कवर लेटर उस डॉक्यूमेंट को जो आपने अंदर रिज्यूमे में लपेट कर आप उसे जो दे रहे हैं उस रिज्यूमे को आप किस तरह से मोल्ड करेंगे फॉर योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, कि आप उसके काम किस तरह से आ सकते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। तो बेसिकली ये एक्टिविटी अपने आप को उस लिए प्रेजेंट करना जरूरी होता है कवर लेटर को,
उसमें इसलिए ऐड करना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली आप उससे अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस हाउ आई एम गोइंग टू मोल्ड माई सेल्फ टू वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपका कवर लेटर है वो बेसिकली आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को ये बताता है कि हाउ इफेक्टिव यू कैन बी फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, नॉट व्हाट यू हैव डन बिफोर। सो अगर आपका कवर लेटर ही इतना इफेक्टिव हो तो हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो शायद आपका रिज्यूमे देखे भी ना, और आपको सिर्फ कवर लेटर के बेसिस पे ही हायर कर ले। अच्छा, अब यहाँ पर एक और भी बात आती है और वो ये भी है कि जैसे आपसे कहा जाता है कि जी कवर लेटर बहुत छोटा सा होता है और रिज्यूमे जो है वो अ, उसको ज़रा डिटेल्ड होना चाहिए। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कवर लेटर याद रखें कि वो एक पेज से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन वन पेज। लेकिन दो लाइनें भी नहीं होनी चाहिए उसमें। कवर लेटर में अगर सिर्फ दो लाइनें लिखते हैं तो ये बहुत ही इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, जबकि इट इज़ अ फॉर्मल एक्टिविटी। तो जो फॉर्मल एक्टिविटी होती है उसमें आपको जो राइटिंग की जो प्रोटोकॉल्स हैं, तो राइटिंग का प्रोटोकॉल क्या कहता है? सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आप उसमें बॉडी ऐड करते हैं और आखिर में उसको कंक्लूड करते हैं। तो द ये जो तीनों एलिमेंट हैं किसी भी राइटअप के, वो आपको कवर लेटर में ज़रूर 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 ऐड करने होते हैं। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कवर लेटर। सो अब ये एक कवर लेटर की एग्जांपल है। इसमें मैं आपको यहाँ पर तो इन्होंने इसको हाईलाइट जो किया है उसके रीजंस हैं और वो रीजंस मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको हमेशा शुरू करेंगे ऊपर से। तो सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो है डेट। तो डेट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें हमेशा याद रखें कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट्स। दिस इज द वे यू आर सपोज टू राइट योर डेट्स। अब तक आप जिस तरह से लिखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके आगे डेट लिखना जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ इसी तरह से डेट लिखनी है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग द डेट। डेट इसलिए ज़रूरी होती है ताकि जो आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है उसे पता हो कि ये आपने कोई पुराना कोई रिज्यूमे उठा के या कवर लेटर उठा के आपने उसको कट पेस्ट करके नहीं भेज दिया है। यू हैव पुट इन एन एफर्ट इन टू राइटिंग अ न्यू कवर लेटर। सो डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और ये हमेशा अपने जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें डेट प्लेज अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट रोल। माइंड इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कभी भी एलिमिनेट ना करें, कभी भी भूलें नहीं। बीइंग स्टूडेंट्स हम लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, बट व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो माइंड इट दैट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर कवर लेटर। उसके बाद जहां आपने अप्लाई किया है उसमें अगर तो आपको उस बंदे का या जो खातून है उनका नाम पता है तो आपने उसका नाम ज़रूर मेंशन करें, इसलिए कि नाम वो वाहिद चीज़ है जो इंसान की होती अपनी है, लेकिन उसे वो खुद कभी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब कोई और इस्तेमाल करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसको इस बात की होती है कि सामने वाला आपको आपके नाम से जब पुकारता है तो आपको एहसास होता है। तो यही एहसास आपने उसे भी देना होता है। जब आप उसे ये फीलिंग देंगे कि ही और शी इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो ही विल गिव यू ड्यू कंसिडरेशन while going through your resume and cover letter। फिर उसके बाद आपने उसका अगर वो नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मली जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो फंक्शन, जॉब फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। तो वो आपको या तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लिख दें या हायरिंग मैनेजर लिख सकते हैं या इवन human resource manager लिख दें। So you that is going to be your address, and then you have to write the physical address of the the company which you are applying for। और उसके बाद यहाँ से अब आप देखें तो जैसे यहाँ उसने फिर उसका नाम से डियर मिस मिस डो करके लिखा है।
तो अगर तो आपको नाम पता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता है तो डियर सर इज गुड इनफ और डियर मदाम इज गुड इनफ। अगर आपको ये नहीं पता है कि जो हायरिंग मैनेजर है वो मर्द है या खातून है, तो फिर डियर सर ऑब्लिक मदाम भी लिख सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग दैट मैडम इज, हमारे इन्वायरमेंट में तो मैडम जो है वो अच्छा समझा जाता है, लेकिन वेस्ट में मैडम इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ ड्रेसिंग। वहाँ पर मैडम जो है वो नॉर्मली, अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ रियलिटी, वो वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स को मैडम कहा जाता है। तो इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखना होता है व्हेन यू आर एड्रेसिंग समवन। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो इट इज ओके टू राइट डियर सर एंड दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। नो नीड टू गिव क्लैरिफिकेशन दैट आपको पता था या नहीं पता था, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। लेकिन ये ज़रूर लिखना है। इसके बाद नॉर्मली यहाँ पर ये जो ईमेल एड्रेस और डियर के दरमियान में अ, एक लाइन होती है नॉर्मली, सब्जेक्ट लाइन। तो अगर आपको जॉब की जो जॉब का जो टाइटल होता है वो आपकी सब्जेक्ट लाइन भी बन सकता है, या आइडियली तो यही रखें, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कवर लेटर में रखें तो अच्छा है, ताकि चूंकि हो सकता है कि कभी कभी कंपनीज जो है वो एक ही वक्त में बहुत सारी जॉब पोस्ट करती हैं। तो अब उनके पास जब उनके पास जब मेल में चीज़ें आ रही हों, तो उनको ये आइडेंटिफाई करना कि ये किस जॉब के लिए एप्लीकेशन आई है, तो उसके लिए बेहतर है कि उसकी कवर लेटर में ही सब्जेक्ट लाइन में आप उस जॉब की जो पोजीशन है उसका टाइटल अगर लिख देंगे, तो दैट विल बी गुड आइडिया टू बी आइडेंटिफाइड फॉर पर्टिकुलर जॉब। उसके बाद उसने कहा है कि दिस इज अगेन अ सैंपल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा इसको इसी तरह से यहाँ से कॉपी किया और वहाँ जाके आपने पेस्ट कर देना है, दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट। यू हैव टू मेक अप योर माइंड दैट इट इज़ अ फुल टाइम एक्टिविटी। जॉब हंटिंग इज़ अ फुल टाइम एक्टिविटी, और इसमें आप यूँ समझेंगे सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपने इसके लिए एफर्ट लगानी है, तब जाके you will be able to compete in the this highly competitive environment which we are living in nowadays. So जिस ज़माने में मैंने पास आउट किया था, तो उस ज़माने में तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ और ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। इसकी वजह ये है कि उस ज़माने में इंटरनेट भी नहीं था, तो हमें पता भी नहीं चलता था कि क्या चीज़ अवेलेबल है और मार्केट में किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है। So we were doing on our own. उसके बाद कहता है जी कि I look forward to discussing the lead digital marketing position and my qualifications with you in more detail. Uh, I'm available to talk to your convenience. I'll be in touch next week to follow up and to make sure you have received my application. Thank you so much for your time and consideration. अब आप यहाँ पर देखें, आपको जो दो बातें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पर, और you are not supposed to make mistake in that. And those two things are, uh, मेरा ख्याल है कि अजान आ रही है बैकग्राउंड में, तो मुझे स्टॉप कर दूं, क्योंकि वो उसकी वजह से डिस्टरबेंस भी हो रही है। लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओवरव्यू इसलिए कि ताकि ये जो बीच में जो डिस्टरबेंस हुई है वो थोड़ी सी एलिमिनेट हो जाए। जो हमारे रिकॉर्डिंग स्पेशलिस्ट हैं वो फिर इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे, ताकि जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव बन सके। सो you have you are not supposed to forget or
forget writing the date. Try to write the name of the person if you know the name, and if you don't know the name, then the human resource department or the human resource manager or the hiring manager is fair enough. Then you have to write the address of the organization. Then you have to uh, write salutation, and before that you are it's good to write subject. uh, if you are sending it through ईमेल, तो फिर वहां पर तो चूंकि सब्जेक्ट लाइन होती है, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप डायरेक्टली डियर मिस डो से ही शुरू करेंगे। इवन डेट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट जो है वो सिस्टम से, आपके ईमेल पोर्टल जो है वो सिस्टम से डेट उठा लेता है। सो वहां पर तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको अगर प्रिंट करके अगर सेंड कर रहे हैं, तो फिर यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस। सो इसमें फिर मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर वी वर हियर, आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग। अब टू के साथ नॉर्मली जो वर्ब आता है, उस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है विदाउट आईएनजी। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग द लीड डिजिटल मार्केटिंग पोजीशन। नाउ मैंने ये सवाल, यू वोंट बिलीव मी, कि मैंने ये सवाल वहां पर भी वाला वाले से, तो वहां पर जो प्रेजेंटर थे, मैंने उनसे पूछा भी था कि व्हाट इज द रीजन दैट दिस इज रिटन विद आईएनजी। तो ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू कि वो जो लेडी जो प्रेजेंटर थी, शी आल्सो डिडंट नो व्हाई इट इज लाइक दिस, बट I have an idea that why it is like this, but we will discuss some other time. For the time being, let's focus on this. So यहाँ पर आपने I look forward to meeting you, or I look forward to यूज कर रहे हैं, उसके साथ आईएनजी जरूर लगाना है, नॉर्मली ये होता है। और in more detail, and I am available to talk at your convenience, or I'll be in touch next week. अब इसने नेक्स्ट वीक इसे यहाँ पर क्यों लिखा है? इसलिए नेक्स्ट वीक लिखा है कि चूंकि अगर आपने आज ईमेल किया है, तो भले से ईमेल उसको विद इन 5 मिनट्स ही मिल जाएगी उसको, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि वो आपकी ईमेल को फौरन चेक करे। और अगर वो आपने बाय मेल भेजा है, तो बाय मेल अगर जब जाएगा, तब भी नॉर्मली वो एक हफ्ते का टाइम बीच में रखते हैं। एक हफ्ते बाद जब वो सबकी जो 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 उसकी ड्यू डेट होती है सबमिशन की, उसके बाद भी उसको जब वो कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से एक जो जूनियर क्लर्क होता है, वो उसमें से आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है, या उसकी सेग्रीगेशन करके, और फिर जो डायरेक्ट कंसर्न बंदा होता है उसके पास फिर वो रिज्यूमे जाते हैं। सो इसलिए आपने फौरन उसको टच नहीं करना है। यू आर सपोज टू फॉलो अप जो है वो आपने उसको कम से कम एक हफ्ते बाद जो है आपने या तो कॉल करना है, या एक फॉलो अप ईमेल सेंड कर दें कि भाई मैंने भेजा था, तो उसका क्या हिसाब किताब रहा। तो ये आप मतलब इस तरह से आपका ये क्लोजिंग हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, and this is it, sincerely in yours name, and this is it. So I hope that this is fairly a good idea as to how to write cover letter, what are the pluses and minuses of writing what and excluding what. And even if you feel like that you are having queries about cover letter, don't hesitate, just write it in your चैट बॉक्स, और या फिर मतलब ये कि सेशन के एंड में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो यू कैन रेज योर क्वेश्चंस। नाउ इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज नाउ डेज जो आजकल जो फॉर्मेट चल रहा है, वो फॉर्मेट मोर लेस इस तरह का है। रिज्यूमे के लिए ये याद रखें कि मेक श्योर
that it is not supposed to exceed 1 page. 1 पेज से ज्यादा लंबा आपका जो रिज्यूमे है वो 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, इवन देन आप 1 से 1.5 पेज तक जा सकते हैं, 1.25 पेज तक जा सकते हैं, बट नॉट मोर देन 1.5 पेजेस इन एनी केस. अगर आपके पास 10 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो एट मैक्स आप जो जा सकते हैं वो 2 पेज तक जा सकते हैं. 2 पेज से ज्यादा उसमें भी अवॉइड करना चाहिए अनटिल पोजीशन है वो बहुत ही वो हाई हाई लेवल की पोजीशन है और उसमें आपको अपनी हर चीज को जो है वो बताना है. इसकी वजह एक और भी है और वो ये कि अगर आपने सारी बातें अपने रिज्यूमे में लिख दी तो फिर आपके पास इंटरव्यू में बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. और दूसरी बात ये है कि माइंड इट दैट आपका जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है ही इज नॉट गोइंग टू लुक एट योर रिज्यूमे इन माइनर डिटेल्स. लेकिन वो डिटेल में ना जाने के बावजूद कम से कम उस जगह को जरूर पिन पॉइंट कर लेगा जहां आपने कोई मिस्टेक की होगी. सो नेवर एवर मेक एनी मिस्टेक बिकॉज इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. और इसमें किसी भी किस्म की जो आपकी मिस्टेक होती so this is this all these things you have to keep in your mind very loud and very clear. अच्छा, अब यहाँ पर इस फॉर्मेट में इन्होंने स्किल सेट को यहाँ पे रखा है. तो यहाँ पर जो स्किल्स आती हैं नॉर्मली वो स्किल्स होती हैं जो आपकी एजुकेशन से एजुकेशन का जो आपने जो पूरा जिस जो पीरियड टाइम जो टाइम पीरियड गुजारा है उसमें जो आपने जो हार्ड स्किल्स सीखी हैं यहाँ पर वो स्किल्स आती हैं. हम आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे स्टार रिज्यूमे में वो हम बात कर रहे हैं बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स के बारे में. और जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो स्किल्स जो हैं वो यहाँ पर लिखी जाती हैं. माइंड इट. एंड इसीलिए मैं आज आपको जो ये पूरा जो आपका मैंने आज का ये सेशन या वेबिनार मैंने अरेंज किया है वो इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो है वो यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए इवन आपकी जो प्रोफेशनल हिस्ट्री है उससे भी पहले. और ये समरी में क्या होगा, एजुकेशनल हिस्ट्री में क्या होगा, ये अभी हम आगे चल के बात करेंगे. लेकिन यहाँ पर जो स्किल्स इसने यहाँ पर मेंशन की हैं ये स्किल्स जो हैं वो बेसिकली आपके हार्ड स्किल्स हैं. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स जो कि यहाँ पर आएंगी. सो दैट इज गोइंग टू बेसिकली मेक यू शाइन लाइक a star when your resume touches the hands of your prospective employer. So I hope that is it also is making sense to you why it is so important for you to learn and know uh, various things. अच्छा जी, अब इसके डूज एंड डोंट्स आपको यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं जो आपका जो रिज्यूमे है उसमें. तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप देखें कि इसमें इसने ईयर लिखा है और उसके साथ प्रेजेंट लिखा है. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जो एक्सपीरियंस को जी जो क्रोनोलॉजी होगी वो करंट जॉब से शुरू होगी. आपने 10 साल पहले क्या जॉब की है, 10 साल पहले आपने क्या पढ़ा है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट क्योंकि 10 साल पुराना था. सो यू आर सपोज टू बी करंट इन ऑल योर क्रोनोलॉजीज. तो अगर आपने जैसे आगे चल के अगर आप क्वालिफिकेशन जब आप लिखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो उसमें भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है, असेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं करना है. इट हैज टू बी डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने इसीलिए इसको यहाँ पर दिखाया है कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 टू प्रेजेंट. क्योंकि ये जो स्लाइड बनी हुई है ये ये है 2018 में बनी हुई है और ये मैंने नहीं बनाई है, ऑब्वियसली मैंने नेट से उठाई है. और जो नेट से जहाँ से उठाई है उसका लिंक मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में शेयर किया हुआ है. यू कैन फॉलो दैट लिंक एंड फाइंड आउट
all the relevant information from there as well in greater detail if you really are interested in going through this exercise very effectively. उसके बाद अब आप देखेंगे कि इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस की हेडिंग लगाई है, फिर उसके बाद जो कंपनी है उसका नाम है और उससे रिलेटेड, लेकिन अब यहाँ जो ये चीज़ इसने दिखाई है, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ये मैंने क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि जो राइट अप्रोच, इसी चीज़ को लिखने की जो राइट अप्रोच है वो आपको अगली स्लाइड में नजर आएगी। So just go through it, keep it in mind so that when I discuss the next slide, तो आपके जहन में हो कि वहाँ पर आपने क्या मिस्टेक की थी. Although I'll be coming back again on this slide as well, so you don't have to worry about that. तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ask to play by friends. तो अब आपको दोस्त ने खेलने के लिए अगर कहा है तो इसका मतलब ये कि you are not interested. तो इस तरह के जुमले जो हैं, they also play a very negative role in you being hired. So you have to be very, very positive when you are writing your resumes. ये उसी चीज को लिखने का सही मेथड है जो पिछली स्लाइड में आपने देखा। तो पिछली स्लाइड में आपने 3 पॉइंट ही दिए थे, यहाँ पर भी आपने 3 ही पॉइंट दिए हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो लिखने का स्टाइल है या जो मेथड है वो टोटली डिफरेंट है। Recruited to join elite team that placed it first in tournaments 3 years in a row. तो अब आपने ये क्या क्या, पहले तो वहां पर ये लिखा था जी आपने कि जी दोस्तों ने कहा तो मैंने ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर आपने ये कहा कि दोस्तों ने नहीं कहा, कि बल्कि मैंने अपनी काबिलियत से वो पोजीशन हासिल की थी अपनी टीम में, और वो भी वो टीम थी जिसने 3 साल तक फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो ये आपको एक शाइन करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव वे ऑफ प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ। एक्सीडेड 1 मिलियन पॉइंट्स। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसमें आप देखेंगे आगे भी चल के कि इसमें हमेशा नंबर्स में चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर 17%, फर्स्ट, 1 मिलियन। इसकी वजह क्या है कि ये जो है ना, ये हाईलाइट्स हो रही होती हैं कि आप यू आर बेसिकली नंबर 1। अब जिसकी मिसाल मैं दूं कि अगर आपसे पूछा जाए चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा, तो कहा जाएगा कि जी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, सबको पता है। फिर आपसे पूछा जाए कि जी दूसरा कदम किसने रखा, तो दूसरा कदम किसी और ने नहीं रखा, दूसरा कदम भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही रखा था। तीसरा कदम जो था वो कोई और था जिसके भी रिसेंटली डेथ हुई है, और मुझे नाम अभी याद नहीं है। अब इसकी मिसाल क्या है, ये मैंने क्यों मिसाल दी, इसकी मिसाल ये इसलिए दी कि जो फर्स्ट होता है उसको सब याद रखते हैं, सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले जो हैं उनको नहीं रखते। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आपका रिज्यूमे नंबर 1 पे होगा तो यू विल बी हायर्ड, और अगर नंबर 1 पे नहीं आएगा सिलेक्शन प्रोसेस में तो यू विल नेवर बी हायर्ड। दैट ऑल्सो मेक्स यू शाइन लाइक ए स्टार। इसके बाद कहता है जी स्पेशलाइज्ड इन टर्निंग sharp corners with high hand dexterity, leading to a 17% advantage over competitive teams. अब आपने यहाँ पर फिर परसेंटेज से अपने आप को शो किया कि यू वर, हाउ मच गुड यू वर while performing in your job. So this is the basic, ये जो पिछली वाले स्लाइड में, ये इस स्लाइड में और इस स्लाइड में आपने डिफरेंस देखा। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया कि आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। उसके बाद जो हाईलाइट की हुई हैं वो चीज़ें आप देखें कि मोस्ट रिसेंट जॉब फर्स्ट। अच्छा, उससे भी पहले फिर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आप देखें, अभी भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के जहनों में एक चीज़ होगी, और वो ये कि यू वुड बी राइटिंग या लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, योर रिलीजन, योर फादर्स नेम। माइंड इट, your employer is not interested in your father, he is not interested with in your religion, he is not interested in your age even, वो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। सो नेवर एवर राइट एनीथिंग लाइक फादर्स नेम, एज, रिलीजन, CNIC, इन सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली राइट योर नेम, योर ईमेल एड्रेस,
योर फोन नंबर एंड एट मैक्स आपका जो एड्रेस है वो। और अगर एड्रेस भी लांडी कोरंगी और न्यू कराची है तो उसको अवॉइड करें तो बेहतर है। इसकी वजह यह है कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक होता है उस इलाके का जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे ज़रूर आता है। और जो अच्छी कंपनीज होती हैं दे लाइक टू हायर गुड पीपल, दे डोंट लाइक टू हायर someone who is not belonging to a very good background. सो उसमें अवॉइड करें या फिर अपने किसी ऐसे रिलेटिव का नाम या एड्रेस दे दें जो किसी अच्छी लोकेशन में रहता हो। लियारी, मलिर, ये थोड़े लो लो एरियाज कहलाते हैं। मैं यहाँ पर खुदा न खास्ता किसी को अंडरमाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हाउ योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इज गोइंग टू लुक एट योर एप्लीकेशन। How is he going to judge you just by going through your resume and cover letter? This is what I intend to tell you. There is no other intention at all. So don't take me negative. This is very, very important that it has to be like this. ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक और चीज होती है, अगर आप खुश शक्ल हैं तो अपना फोटो जरूर लगाएं। लेकिन क्योंकि ये चीज भी जो है वो पे ऑफ करती है। लेकिन अगर शक्ल 19-20 के फर्क से मुझ जैसी है तो अवॉइड पुटिंग अनटिल एंड अनलेस कि आपसे कहा जाए कि जी आपने पिक्चर लगानी है अपने रिज्यूमे में, तब तो जरूर लगाएं। अदरवाइज देर इज नो नीड टू पुट योर पिक्चर इन योर रिज्यूमे, नो नीड एट ऑल। खुश शक्ल है तो जरूर लगाएं। खुश शक्ल अगर शक्ल, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपके इख्तियार में नहीं है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसको फिर आपने ओवरकम करना है अपने राइट अप से। उस चीज को ओवरकम करने के लिए फिर आपको अपना राइट अप जो है उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर फिर अब जो चीज आ रही है वो यही है कि मोस्ट रिसेंट जॉब फर्स्ट एंड फॉलोड बाय प्रायर वर्क एक्सपीरियंस। तो उसके बाद आप जो नेक्स्ट लाइन में जो आएगा वो वाला एक्सपीरियंस जो कि आपका इमीडिएटली इसके बाद वाली जो है। तो अगर आपको जो भी एक्सपीरियंस लिखना है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। टॉप से शुरू करना है, जो करंट आपकी जॉब है वहां से पीछे की तरफ जाना शुरू करेंगे और सबसे आखिर में वो जॉब लिखेंगे जो आपकी सबसे पहली जॉब थी। ठीक है, तो दिस इज वे ऑफ राइटिंग इट। इसके बाद इसने ये बताया है कि जी ये दीज आर वैलिड वेज ऑफ मेंशनिंग द कंपनी वेयर यू वर्क, और उसमें कब से कब तक, और उसमें आपकी पोजीशन क्या थी। ये तीन चीजें आपने जरूर मेंशन करनी है। उसके नीचे फिर तीन तीन बुलेट फॉर्म में तीन तीन पॉइंट्स देने हैं कि व्हाट वर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस पोजीशन एट दिस कंपनी। तो इसी तरह से ये दूसरी कंपनी, फिर तीसरी कंपनी, फिर चौथी कंपनी। यहाँ पर आप देखें कि उसने डेट सब में एक जैसी डाली है। डजेंट मैटर, क्योंकि इसने एक्चुअली मुख्तलिफ वेज लिखे हैं टू राइट द कंपनी नेम। जो कंपनी का नाम है उसको किस तरह से लिखना होता है, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अनटिल एंड अनलेस कि कोई बहुत ही थकी हुई कंपनी हो, तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं उसके नाम जरूर हाईलाइट करें। अच्छी कंपनी में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपको नई कंपनी जिसमें आप जाना चाह रहे हो वहां पर आपको कंसिडर जरूर किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट इट दिस वे। उसके बाद अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज अब ये जो और एक बात मैं और बता दूं कि ये जो आपको राइटिंग स्टाइल आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये रिज्यूमे राइटिंग का वो स्टाइल है जो कि नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में एप्लीकेबल है। और पाकिस्तान चूंकि वी आर फॉलोअर्स, वी आर नॉट in introducing our no, own way of writing things, so we have to follow। और फॉलो आपने जब करना है तो वो वही स्टाइल फॉलो करना है जो कि इंटरनेशनली वैलिड है। तो अगर आप आज अगर लोकल कंपनी में है, हो सकता है कल आपको
किसी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब ऑफर होती है तो वहां पर फिर आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि यू शुड नो हाउ टू राइट। तो इसमें आपने डेट नहीं लिखनी होती है कि कौन सी तारीख से, सिर्फ आपको मंथ लिखना होता है और ईयर लिखना होता है। और मंथ में भी आई वुड सजेस्ट, दिस इज माई सजेशन, और ये मैं सजेशन, इसका रीज़न है, मैं ऐसे ही सजेशन नहीं दे रहा हूँ, और वो ये रखें कि जैसे आपने देखा होगा कि जनवरी होता है तो उसको JN लिखते हैं, फरवरी को FEB लिखते हैं, मार्च को MAR लिखते हैं, अप्रैल को APR। तो तीन लेटर वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं टू मेंशन द मंथ ऑफ अ ईयर। तो उस चीज को फॉलो करने से फायदा क्या होगा कि आपका जो ये डेट वाला पार्ट है वो थ्रू आउट आपको कंसिस्टेंट नजर आएगा। अगर आपने एक डेट इस तरह लिखी है, दूसरी इस तरह से लिखी है, तो अब आप देखें कि ये जो कंसिस्टेंसी है ये आपकी थोड़ी सी लूज हो गई है यहाँ पर। तो उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने का जो तरीका है वो ये है कि 3 लेटर वर्ड जो है जो मंथ को रिप्रेजेंट करता है, आप सिर्फ MAR 2020 लिख दें, फेयर एनफ, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर इस चीज को मेंशन करना जरूरी था। यहाँ पर उसने बताने का मकसद उसका ये था कि ये थोड़ा सा आउट हो रहा है, इसी चीज को वो मेंशन करना चाह रहा था यहाँ पर, कि इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके बाद यूज द कंपनी और रोल डिस्क्रिप्शन लाइन टू प्रोवाइड फैक्चुअल डेटा अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। तो जो जो आपकी कंपनी का या तो मतलब कोर बिजनेस है, या तो आप उसे मेंशन करें, या जो आपकी अपनी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या सेल्स डायरेक्टर या HR मैनेजर, ठीक है, उस चीज को आपने मेंशन करना है। ये जो इन्होंने मेंशन किया है ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि आप कम, इसका मतलब ये कि आप यहाँ पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि प्रमोट आपने अपने आप को करना है। You as a chief operating officer, what you did, what was your assignment and how did you perform, that is what is required। अब यहाँ पर जैसे इसमें लिखा है recruited by CEO to take over all HR operations manual nationally, तो ये जाहिर है कि जब इस पोजीशन पे आप जाएंगे, HR मैनेजर की पोजीशन पे, तो वहां पर CEO ही आपको हायर करेगा, तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो चीज, जिस चीज को मेंशन करना है वो ये कि व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चीज को आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज और, फिर यही जो डेट वाला पार्ट है उसमें आप देखें कि चूंकि ईयर चार चार लेटर होते हैं और 3 लेटर ये, तो अगर यहाँ पर ये आपने 2 लेटर बढ़ाए तो आप ये थोड़ी सी जो इन दोनों में जो कंसिस्टेंसी है वो आउट हो गई है। तो उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए इसको भी आप ये दो दो वर्ड आप यहाँ से निकाल देंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मूव हो जाएगा, और आपका ये जो पूरा डेट वाला जो कॉलम है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा थ्रू आउट। सो आई होप कि दिस, अच्छा, दूसरी बात ये कि जो कुछ आप यहाँ पर लिखते हैं, ट्राई टू बी एज सिंसियर एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। उसमें कहीं पर भी एग्जेजुरेशन ना करें। इट इज बिकॉज आपको तो लगेगा कि यार मैंने बेवकूफ बना दिया अपने एम्प्लॉयर को, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, उसके पास वो एक कंपनी चला रहा है एंड ही नोज हाउ पीपल मैनिपुलेट फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू कि चांसेस आर, अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो देर आर ब्राइट चांसेस दैट ही विल पिक यू अप राइट एट दैट पॉइंट जहां आपने कहीं गलती की है। और ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको दे नो इट वेरी वेल। उनको पता है कि मैं जब कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास रिपोर्ट आती है तो उसको मैं सिर्फ वन गो में उनको वही चीज़ पिक करके बताता हूँ कि उन्होंने कहाँ पर गलती की है। सो डोंट मेक दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स एवर। उसके बाद कहता है, अच्छा अब ये वाली जो स्लाइड है, अब हो सकता है कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है या आपका जो टेन्योर है जॉब एक्सपीरियंस का, उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं गैप्स भी होंगे। तो और वो गैप्स जो है उसको कैसे पता चलेंगे, वो यहाँ से जो आपने डेट मेंशन की है वहां से उसको पता चल जाएगा। तो उन गैप्स को, अगर तो आपने उसमें कोई काम किया है
तो उस गैप में जैसे अगर आपने सपोज करें कि जी बी करने के बाद आप ने 2 साल जॉब की, उसके बाद आप मास्टर्स करने चले गए, तो आप मेंशन करें कि जी इस टाइम पीरियड में मैं बाहर चला गया था मास्टर्स करने या पीएचडी करने, तो वो तो एप्लीकेबल है, लेकिन आप आउटराइटली उस गैप को बीच में से एलिमिनेट नहीं कर सकते। और अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं किया है तब भी आप उसको खामखा फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, उस पार्ट को आउटराइटली उसमें से निकाल दें। अब यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ लिखी है वो ये लिखी है कि स्टे एट होम पेरेंट फॉर फैमिली ऑफ फोर एनर्जाइज टू रिटर्न टू वर्क। अब ये हमारे इन्वायरमेंट में ये वाला पार्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में मर्दों को मेटर्निटी लीव नहीं मिलती है। वेस्ट में मैटरनिटी लीव भी मिलती है मर्दों को भी और औरतों को भी। औरतों को स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ द बर्थ, और मर्दों को उस पीरियड में 3 महीने की ऑफिशियल पेड लीव मिलती है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर मर्द और औरत जो हैं उनमें इस तरह के डिफरेंसेस, दे डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ डिफरेंसेस। इसके अलावा आप फिर एक चीज़ और यहाँ पर दोबारा नोट करें कि यहाँ पर फिर वो फिगर्स में इन्होंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है, 16%, $X million एंड X नंबर ऑफ डेज। तो जो भी आप एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लिख रहे हैं उसमें कोशिश करें कि उसको नंबर्स में ज़रूर रिफ्लेक्ट करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज सो? बिकॉज जो नंबर होते हैं उस पे आपका एम्प्लॉयर जब नंबर्स को रीड करेगा तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि यू आर गुड एट नंबर क्रंचिंग। और ये नंबर क्रंचिंग जो है वो बेसिकली आपको शार्प बनाती है फॉर कैलकुलेशन वर्क एंड रीचिंग टू राइट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे अगर आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, अब अगर उनको ग्रेड्स ना दिए जाएं और उसमें सिर्फ पास या फेल लिखा जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हु हैज़ पास्ड एंड हु हैज़ फेल्ड। उसको हाईलाइट करने के लिए ज़रूरी है कि उसको नंबर्स में मेंशन किया जाता है कि जो ये सारे स्टूडेंट जो पास हुए हैं उसमें से भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है वो कौन है। तो उसके लिए फिर आपको ग्रेड या नंबर्स दिए जाते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से जब आप नंबर क्रंचिंग मेंशन करते हैं अपने रिज्यूमे में तो यू आर पिक्ड अप, बिकॉज जो आपका एम्प्लॉयर है उसको ये पता चल जाता है इनडायरेक्टली कि यू आर गुड एट नंबरिंग एंड यू नो हाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसको नंबर्स में मेंशन करें। इसके अलावा फिर आप अगर इसी इसी इससे पिछली स्लाइड में ही देखें तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ जो इसने स्टार्ट किया है वो आई से नहीं किया कि आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस। आई कभी भी रिज्यूमे में यूज नहीं होता है, माइंड इट। आई को अगर आपको बहुत शौक है यूज करने का आई, तो आप अपने कवर लेटर में जरूर यूज करें, लेकिन रिज्यूमे में कभी भी आई यूज नहीं होता। तो उसका जो 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 फ्रेज बनता है वो हमेशा एक्शन वर्ब्स से होता है। और एक्शन वर्ब्स की यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दी हुई है। ये एक्शन वर्ब्स जो है आपको तमाम नेट पे अवेलेबल हैं, मैंने भी नेट से ही लिया हुआ है। और अगर आप सिर्फ उसमें लिख देंगे एक्शन वर्ब्स और रिज्यूमे राइटिंग तो आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। एक्शन वर्ब्स हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होता है, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है उसमें। जैसे ये यहाँ पर अगर आप देखें कि एक्सेलरेट नहीं वर्ड यूज किया उसने, एक्सेलरेटेड, अकम्प्लिश्ड, एनालाइज्ड, असेंबल्ड, बिल्ट, चार्टेड, क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टेड, derived, customized, curated, enlivened, instructed, performed, presented। अच्छा, अब ये एक्शन वर्ब्स हैं। अगर आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं तो उसमें नॉर्मली ये लिस्ट है जिसमें से आप 3-4 वर्ड्स निकाल के अपने रिज्यूमे में यूज करें। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक्शन वर्ब्स यूज हो सकते हैं। एक्सप्रेस कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वहाँ पर आप ये वाले यूज कर सकते हैं। इसी तरह से क्रिएटिव एक्सपीरियंस के लिए ये एक और लिस्ट है। इसी तरह से आगे चलें तो देर इज अनदर जॉब स्पेसिफिक एक्शन वर्ब्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सेल्स एक्सपीरियंस है अगर आपका तो उसमें ये वर्ड्स होंगे। इसी तरह से लीडरशिप एंड मैनेजमेंट,
तो ये जो वर्ड्स हैं ये नॉर्मली आपके एक्सपीरियंस, आपके जो रिज्यूमे है उसमें ये जरूर आने चाहिए। पिछले वाली स्लाइड में जो आपने देखे हैं अकम्पलिशमेंट, सॉरी, ये जो अकम्पलिशमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्रिएटिव स्किल्स, ये हो या ना हो, लेकिन ये वाली इसलिए ज़रूरी है कि चूंकि अगर आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन आप देंगे जहाँ जहाँ आपने जॉब की है कंपनी में, उससे उसको जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो उसमें मोर और लेस ये वाले वर्ड्स यूज करने की कोशिश करें। अगर नहीं आते हैं तो ट्राई मेकिंग यूज ऑफ दीज एक्शन वर्ब्स। तो ये एक्शन वर्ब्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल योर sentences in describing your job responsibilities in your work experience in the resume should begin with these action verbs. इसी तरह स्किल सेट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो पिछली स्लाइड में आपको जो एक्शन वर्ब्स दिए हैं उनमें से कुछ वर्ड्स यूज जरूर करें, क्योंकि एक्शन वर्ब्स जो हैं दे स्पीक लाउडर देन एनीथिंग। अब आते हैं हमारे आज का जो एक्चुअल मुद्दा जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे थे। अब आपको बैकग्राउंड पूरा पता चल गया है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट अ रिज्यूमे, राइट अ कवर लेटर। नाउ वी आर मूविंग इनटू व्हाट इज स्टार मेथड। तो स्टार मेथड के लिए सबसे पहले जो जॉब आप अप्लाई करते हैं तो जो जॉब का जो पिरामिड है वो, इसका एक पिरामिड बनता है, और उस पिरामिड का जो सबसे बेसिक पार्ट है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट, वो कहलाता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पर नॉर्मली वर्किंग क्लास जो होती है वो काम करती है। जो वर्कर्स होते हैं, जो डीएई होते हैं या बीटेक जो होते हैं, दे ऑल वर्क एट दिस पोजीशन। उससे जब ऊपर पोजीशन आती है, सॉरी, उसके बाद वाली जो पोजीशन है वो है टेक्निकल मैनेजमेंट। ये बेसिकली कहलाती है आपकी मिडिल मैनेजमेंट की। ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो ये लोअर मैनेजमेंट या फ्लोर मैनेजमेंट भी कहते हैं, या आप इसको फ्लोर, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो फ्लोर मैनेजर्स कहलाते हैं। ये मिडिल मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजर्स। और इसके बाद वाली जो पोजीशन आती है वो होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो अब आपको एक चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए कि इसमें ये कलर्स को इस तरह से क्यों मेंशन किया गया है। तो ये कलर्स मैंने ऐसे ही मेंशन नहीं किए हैं, इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है। और वो इम्पोर्टेंस ये है कि जो ये लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो जो जॉब्स होती हैं वो ब्लू कलर जॉब्स कहलाती हैं, इसीलिए इसको ब्लू कलर से रिफ्लेक्ट किया गया है। जो मिडिल मैनेजमेंट होती है वो वाइट कॉलर जॉब कहलाती है। और जो वीआईपीज होते हैं उनके लिए हमेशा रेड कारपेट बिछाया जाता है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, और ये बेसिकली इन सब के लिए खतरे की घंटी भी है, इसलिए इसको रेड से रिफ्लेक्ट किया जाता है। और ये आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है और ये हमेशा टॉप पे होती है। तो आप अच्छा, अब आपको कि हम जब यहाँ से पास आउट होंगे तो हम कहाँ पर बैठे होंगे, तो आप जो है वो तकरीबन इस जगह पर आपकी पोजीशन होगी। दिस विल बी योर पोजीशन वंस यू गेट आउट ऑफ योर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आने का मतलब ये हुआ कि आप आधे ऑपरेशन साइड पे होंगे और आधे वाइट कॉलर जॉब की तरफ। लेकिन आप इन सब लोगों की, यहाँ पर आपके नीचे जो है आप होंगे यंग, लेकिन आपके नीचे जो लोग काम कर रहे होंगे वो हो सकता है कि 30-30, 40-40 साल के, 50-50 साल के बंदे हों। लेकिन चूंकि उनके पास आपके लेवल की क्वालिफिकेशन नहीं है तो दे विल बी वर्किंग अंडर यू। अब इनसे जब आपने काम निकलवाना है तो इस चीज़ के लिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है बेसिकली आपकी सॉफ्ट स्किल्स। और उसी चीज़ को हमने किस तरह से अपने अंदर उस चीज़ को पैदा करना है और जॉब इंटरव्यू के लिए अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, उसके बारे में हम अब बात करेंगे कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर थ्रू योर स्टार इंटरव्यू टेक्निक। यू हैव टू बी स्टैंडिंग आउट, मतलब जैसे सब हैं वैसे ही अगर आप होंगे यू विल नॉट बी हायर्ड। तो अपने आप को सबसे अलग दिखाना बहुत जरूरी है। अलग दिखाने के लिए यू हैव टू स्टैंड आउट, और व्हेन you stand out, only then you will be picked up. So if you want to be picked up, you need to be stand out, and when you are standing out, you have to have a
थॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ जॉब हंटिंग। अब इसके लिए आपको कुछ चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं और कुछ चीजों की आपको जरूरत है। तो उसमें जो सबसे पहली स्किल है वो है नेचुरल स्किल। आपको बहुत सारी चीजों को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने अंदर चेक करें, कोशिश करें, देखें कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आप बगैर कुछ किए हुए कर लेते हैं। तो अगर वो चीज आपके अंदर है तो दैट इज कॉल्ड योर नेचुरल स्किल। तो आपने अब आपको अपने अंदर इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर योर नेचुरल स्किल्स। और वो जो स्किल्स हैं उसको जितना आप पॉलिश कर सकते हैं इस उस पीरियड में जिसमें आपके पास यू आर जॉब हंटिंग, तो दैट इज गोइंग टू बी a very very positive thing for you to be successful. The other skill is the technical skill. तो ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप बेसिकली जो चीज सीख रहे हैं वो है आपकी टेक्निकल स्किल्स। उसके बाद हार्ड स्किल्स। तो इसी टेक्निकल स्किल्स जब आप कर रहे थे तो जो आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं लैब में, वो बेसिकली आपकी हार्ड स्किल्स को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं। और हम जिस चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। अब ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने बिहेवियर, एटीट्यूड, उसमें आप अपने चेंज लानी पड़ेगी। और उस चेंज को लाने के लिए हम ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसमें हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। इससे पहले अब आपको एक चीज और जो देखनी है अपने अंदर वो है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ तो बहुत सारी हैं। कोई भी आपसे पूछे कि जी आप क्या हैं तो आप अपने आप को हमेशा टार्जन ही शो करेंगे। लेकिन अंदर से आपको खुद पता है कि यू डू हैव सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स। तो जब आपको अपनी शॉर्ट कमिंग्स का पता है तो उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और उसको ओवरकम करने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज जो आपने अब तक बीई का जो पूरा सफ़र तय किया है और जो आइंदा आप सफ़र तय करेंगे, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बात और सवाल याद रखें कि जॉब इंटरव्यू में एक सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा और वो सवाल होता है नॉर्मली कि व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो अगर आपने उसमें ये कहा कि जी मेरे कोई वीकनेस नहीं है तो यू विल बी आउटराइटली रिजेक्टेड। लेट मी टेल यू लाउड एंड क्लियर, because everyone knows that each and every single of us has certain shortcomings। और आपको अपनी shortcomings का ये अगर नहीं पता है और आपने outrightly कह दिया कि जी मेरे अंदर तो कोई किसी चीज़ की वीकनेस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कि वो कहेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहा है। तो उनको कंपनीज को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदे भी नहीं चाहिए होते हैं जिनको इतना कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर। ये बेसिकली कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। ओवर कॉन्फिडेंट बंदों की इंडस्ट्री में जरूरत नहीं होती है, दे आर नॉट सक्सेसफुल। अब है जी आपका स्टार मेथड फॉर बिहेवियरल एनालिसिस। और इसमें आपने जो चीज़ देखनी है वो यही है कि इफ्तिखार आरिफ साहब इसमें कहते हैं कि जी आसमानों पे नजर कर अंजुम महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। तो आपने ख्वाब देखना शुरू करें। और ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ख्वाब देखते हैं तो दो तरह के ख्वाब होते हैं। एक होता है जो रात को सोते हुए देखते हैं और एक होता है जो आप दिन में देखते हैं। तो यहाँ जिस ख्वाब को देखने की बात कर रहा है शायर वो है दिन के ख्वाब। तो जो दिन के ख्वाब होते हैं वो बेसिकली आप प्लानिंग कर रहे होते हैं। उस प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी वर्किंग बहुत स्ट्रांग हो। जितनी स्ट्रांग वर्किंग होगी उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे अपने सारे डीलिंग में। This is what you are going to face once you get a job call। तो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आपने इस आग के दरिया को दूर करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपकी बेसिकली सॉफ्ट स्किल। वो जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसके लिए स्टार मेथड यूज होता है। स्टार मेथड कम्स इन हैंडी ड्यूरिंग इंटरव्यूज बिकॉज
Many candidates have trouble focusing their stories on information that will help them impress the interviewer. अब आपके जहन में एक सवाल यहाँ पर जरूर आना चाहिए कि हमने तो वहाँ पे जो टाइटल है वो तो हमने दिया है जी, स्टार मेथड फॉर इफेक्टिव रिज्यूमे राइटिंग, और इसको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जी आपके इंटरव्यू में आ, इसकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस है। तो वो मैं Q&A सेशन जो होगा उसमें मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं चाहूंगा कि आप खुद अपने तौर पर सोचें इस बारे में कि इसका क्या रीजन हो सकता है। Even if a candidate tells a story in which they were the hero, if it is not delivered well, the message may get lost in translation. A messy story could confuse or even annoy an interviewer, which is the opposite of an ideal outcome. And finally, the STAR method helps candidates walk through their stories in a logical, clear manner. Here are questions to answer for each section of STAR. अब ये जो STAR method है, जिसमें स्टार से बनता है, इसकी जो एस है उससे बनता है सिचुएशन, टी से बनता है टास्क, ए से एक्शन और आर से रिजल्ट। तो ये बेसिकली स्टार है जो कि आपको अपने अंदर डेवलप करना है, और ये स्टार जब शाइन करेगा तो यू विल क्रॉस द, यू विल रीच टू द स्काईज, जिसका शेयर शेयर पिछले शेयर में जो जिक्र हुआ है। तो if you want to reach to that point, then you have to shine like a star. Walk the talk. The STAR method helps candidates walk through their stories in a logical, clear manner. अब हम जो वॉक है उसको कैसे टॉक करना है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये वॉक द टॉक का मतलब ये कि जो आप कह रहे हैं उसको आपको करके दिखाना है। Here are questions to answer for each section of STAR. तो ये है जी पहला सिचुएशंस। अब जो सिचुएशन है उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। अब मैं आपको इसकी अपनी अपनी लाइफ में से लाइव एग्जांपल भी दूंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सिचुएशन कहता है सेट द सीन फॉर व्हाट वाज हैपनिंग इन योर एग्जांपल स्टोरी। व्हाट हैपेंड, हाउ डिड दिस केम अबाउट, हु वाज इन्वॉल्वड, व्हाट वाज द मेन इशू। अब ये इसने कहा कि जी ये सवालात आपने किसी और से नहीं अपने आप से करने हैं, और अपने लाइफ में जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है। अब आप कहेंगे कि जी अभी हम तो बिल्कुल नए नए फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो हमारी लाइफ में तो अभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। तो भले से वो सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन आपकी लाइफ में आपके घर के व्हीलिंग डीलिंग में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी जिसमें से आप कोई ना कोई चीज़ नई सीख सकते हैं। आपने उस चीज़ को विजुअलाइज करना है। अब मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि आई वॉज वर्किंग इन के इलेक्ट्रिक इन, और ये मैं बात कर रहा हूँ समटाइम्स इन 1990 1991 के आसपास, जबकि आपके आप में से बहुत सारे शायद उस जमाने में पैदा भी नहीं हुए होंगे। सो आई वॉज वर्किंग इन के इलेक्ट्रिक, और उसमें पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है पूरा शहर जो है। आई वॉज वर्किंग इन दी कंट्रोल रूम ऑफ दी के इलेक्ट्रिक, और पूरा शहर जो है वो अंधेरे में डूब गया है, और अब हमने इसको रिस्टोर करना है। तो अब ये हो गई मेरी सिचुएशन। ठीक है जी। अब मैंने उसमें क्या किया, उसके लिए अब मैंने टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट में ये होगा कि जी टास्क, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। डिस्क्राइब योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सिचुएशन। What responsibility did you take on to solve the problem? Did your manager assign this task to you? Did you take on this task on your own? Or did others have tasks as well? तो अब आपको ये देखना है कि ये क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें क्या थी। यस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद ली या आपको दी गई थी, और अगर दी गई थी तो क्या किसी और के पास भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या सिर्फ आप ही के पास थी। और उस सिचुएशन से मतलब उस सिचुएशन से फिर आप कैसे निकले। तो पहले आपने स्टोरी को डिफाइन किया, उसके बाद आपको जो काम करना था उसके बारे में आपने बताया। तो जो सिचुएशन थी वो मैंने आपको बताया कि जैसे पूरा कराची जो है वो अंधेरे में डूब गया है और मैं हूँ कंट्रोल रूम में। तो अब मेरा काम क्या होना चाहिए। मेरा काम यही है कि मैं कम से कम टाइम में शहर की रोशनी को
रिस्टोर करूं बाय आइसोलेटिंग द फॉल्ट, जहां पर जिस जिस सर्किट में फॉल्ट आया है उस फॉल्ट को मैं आइसोलेट करूं, और शहर की जो सप्लाई है उसको रिस्टोर करूं। उसको रिस्टोरेशन के में अगर आप मैं डिले करूंगा, तो जो पीछे जनरेटर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन आगे इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं रही है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं रही वो बैकफायर करेगी। बैकफायर करेगी तो वो जनरेटर को उड़ा देगी। तो अब मुझे यहाँ पर दो तीन चीजें करनी है। क्विक डिसीजन लेना है, ये चेक करना है कि जी कौन सी रिलेज ऑपरेट हुई हैं, जिससे मुझे अंदाजा लगाना है कि किस सर्किट में प्रोबेबली फॉल्ट हो सकता है। पहले उसको मैं आइसोलेट करूं, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरा शहर जो है वो वन बाय वन फीडर्स और सर्किट जो है वो ऑन करके उसको रिस्टोर करूं। ये है मेरी टास्क। अब मैंने क्या किया, इसमें जो एक्शन मैंने क्या लिया, एक्शन मैंने ये लिया कि एक्सप्लेन द स्टेप्स यू टुक टू एड्रेस द प्रॉब्लम, व्हाट डिड यू डू फर्स्ट। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, मेरा पहला काम यही है कि फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है कि किस सर्किट में फॉल्ट आया होगा, उसको आइसोलेट करना है। हाउ डिड द पर्सन सिचुएशन रिस्पॉन्ड, जहाँ पर फॉल्ट आया वहां पर जो बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि मैं हूँ कंट्रोल रूम में और ग्रिड स्टेशन पे फॉल्ट आया है, तो उसको पैनिक में नहीं आना चाहिए, पैनिक में मुझे भी नहीं आना है, उसको भी नहीं आना है। मैं उसे कहूँ कि जी फला फला ब्रेकर को जाके ऑफ कर दो, ताकि वो सर्किट ऑफ हो जाए। व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, उसको जब ब्रेकर ऑफ कर दिया तो अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो फॉल्टी सर्किट है वो आइसोलेट हो गया। तो मैं फिर जाऊंगा जनरेटिंग स्टेशन में और उनसे कहूंगा कि जी अब आप वन बाय वन अपने एंड से सप्लाई को जो है आगे बढ़ाना शुरू करें। सो दिस वाज माय एक्शन। जो फिर उसके बाद आता है जी रिजल्ट, शेयर द आउटकम्स ऑफ द एक्शंस यू टुक, व्हाट वाज द एंड रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन। तो अगर आपने तरीके से उस चीज को किया है, अब ये जो बात हो रही है ये कब हो रही है, ये उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में हो रही है, और आपने कोई एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसको आप अपने एम्प्लॉयर के सामने हाईलाइट करके बताना चाह रहे हैं कि दिस इज व्हाट आई डिड एंड द होल सिस्टम वाज रिस्टोर्ड। और ये जो इंसिडेंट है ये सेलिब्रेट करने वाला है। तो यहाँ से भी फिर आप जो है वो स्टार की तरह से शाइन करेंगे। सो अब हुआ, अब मैं अब जो एक्चुअली जो मैंने जो बात कही कि ये हम कर क्या रहे हैं, मतलब हमने तो स्टार तो मैंने निकाल के दे दिया आपको, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या इससे। तो जो आपका जो स्किल सेट बनता है इसमें सबसे पहला जो सिचुएशन, और मैंने आपको जो पूरा सिनेरियो बताया कि सप्लाई बंद हो गई है, तो सबसे पहली चीज ये कि मैं पैनिक नहीं हुआ। तो ये मेरी एक वो हैबिट है या वो खूबी है कि मैं आई कैन वर्क अंडर स्ट्रेस। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, बट आई रिमेन कंपोज्ड इन माय डिसीजन मेकिंग। जब आप कंपोज होते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है। अगर आप कंपोज नहीं होंगे तो आपका डिसीजन जो है वो गलत हो सकता है, आप गलत ब्रेकर को ऑफ करवा देंगे, पैनिक होंगे। तो you have to take hold of the situation first, and based on that control on the situation you will be starting taking decision। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज किया। तो मेरी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, अब ये जो है ये मैं अपनी सॉफ्ट स्किल जब लिखूंगा तो वहां पर लिखूंगा कि आई कैन वर्क अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब उसने कहा कि जी उसमें मैंने लिख तो दिया था, अब इंटरव्यू में उसने पूछा कि भाई तुमने यहाँ पे लिख तो दिया है कि आई हैव कंट्रोल ऑन माय इमोशंस एंड आई कैन वर्क अंडर स्ट्रेस। तो इसकी कोई कहानी है आपके पास। तो वो जो कहानी है उस कहानी को बनाने के लिए ये पूरा स्टार मेथड यूज किया जाता है। इंटरव्यूज में अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो चुप करके बैठ जाए और आपसे कहे कि जी एक्सप्लेन योर सेल्फ। अब आपने कहा कि जी आई माई नेम इज ए बी सी। उसके बाद अगर आप चुप हो जाएं और आपका जो एम्प्लॉयर है जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी अगर चुप हो जाए, तो आपका जो वो 1 मिनट है वो 1 मिनट नहीं होगा, वो आपको 1 सदी के बराबर लगेगा। क्योंकि अब आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि वाई इज ही साइलेंट, वाई इज ही नॉट स्पीकिंग। तो बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे इसलिए जाते हैं ताकि वो आपको मौका देना चाह रहा है टू एक्सप्लेन योर सेल्फ एज डिटेल्ड एज पॉसिबल। तो वहां पर अगर आपके पास बैक एंड पे स्टोरी नहीं होगी
तो यू विल बी साइलेंट आफ्टर वन वर्ड। तो वहां पर उस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए जरूरी है कि यू शुड हैव दिस स्टोरी। उस स्टोरी के लिए आपको ये पूरा स्टार प्रोसेस आना चाहिए, ताकि आप स्टार की तरह से शाइन कर सकें। सो वहां पर मैं कंपोज था अपनी सिचुएशन में। मैंने सिचुएशन को एनालाइज किया, वहां से मेरी एनालिटिकल कैपेबिलिटी आई। वहां से मैंने ब्रेकर्स जो ऑफ करवाए, तो वहां से मुझे ये पता चल गया कि मेरी टेक्निकल स्किल ये है कि मुझे ये पता था कि ये फॉल्ट, ये रिले ऑपरेट होगी तो मुझे ये वाला यहाँ इस सर्किट पे फॉल्ट आ सकता है, मुझे इसके ब्रेकर्स को ऑफ करना है। तो यहाँ से मेरी टेक्निकल कैपेबिलिटीज का मुझे पता चला। उसके बाद मुझे टाइम टाइम चूंकि बहुत शॉर्ट था, तो मुझे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिस्टोर करना था। क्योंकि अगर आधे घंटे से ज्यादा अगर आप देर लगाते हैं पूरे सिस्टम को रिस्टोर करने में, तो आपका जो जनरेटर है वो पीछे से वो ट्रिप कर जाता है। और जो थर्मल जनरेटर्स होते हैं वो नॉर्मली 3 से 4 दिन बाद जाके फिर आप उसको दोबारा ऑन कर सकते हैं। आप इमीडिएटली उसको ऑन करेंगे तो वो ब्लास्ट कर सकता है। और ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये प्योरली टेक्निकल बातें हैं जो आपको शायद अभी समझ में ना आ रही हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल जॉब शुरू करेंगे तो आपको ये इन सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होगी। सो यहाँ से फिर मुझे ये भी पता चला कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई कैन से दैट आई हैव एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। कम्युनिकेशन, अगर मैंने कम्युनिकेशन सही बंदे को सही बात कम्युनिकेट की है तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये सारी स्किल्स जब मैं इस तरह की अपनी लाइफ में से स्टोरीज देखूंगा, उन स्टोरीज को जब मैं डॉक्यूमेंट करना शुरू करूंगा, तो मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी स्टोरीज की, जो कि मैं इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी, जैसे जैसे सवाल होंगे, वैसी वैसी स्टोरीज मैं उसको वहां पर सुनाने की पोजीशन में होऊंगा। एंड दिस इज हाउ आई कैन शाइन लाइक ए स्टार, not only in my resume but in my job interview as well. And to that we come to the end of this presentation. Now I'm giving you an opportunity to raise your questions, अगर if you have any, और अगर नहीं है तो फिर मैं आपको जो है वो इसमें आपको मैं फिर इसके एंड में अभी एक वीडियो क्लिप है बहुत, वो वीडियो क्लिप जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी। तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो भी इट्स ओके, और अगर नहीं देखना चाहते हैं डजेंट मैटर। लेकिन ये मैं बता दूं कि वो वीडियो क्लिप है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी वीडियो क्लिप है। अगर आप अगर और 3-4 मिनट की, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं अभी चला देता हूँ, और अगर नहीं तो फिर अच्छा, अब यहाँ पर ये सवाल आया है मेरे पास कि do not show our age on CV on the interview. Maybe problem it is correct. I told you just now कि never ever mention your age in your resume. अच्छा, there is a difference between CV and resume as well. तो आपने यहाँ पर CV का वर्ड यूज किया है। जब आप यहाँ से पास आउट करेंगे तो माइंड इट कि आप जो लिखेंगे वो होगा बेसिकली रिज्यूमे होगा, CV नहीं होगा। CV जो है वो नॉर्मली डिटेल्ड होता है, और जो डिटेल्ड जो चीज होती है वो नॉर्मली 10 साल 15 साल जिनका एक्सपीरियंस होता है ना, वो जब अपने एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करते हैं तो वो CV कहलाता है। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो नॉर्मली रिज्यूमे लिखते हैं। तो इट हैज टू बी ए रिज्यूमे नॉट CV। All right, sir. Host, can you please unmute Mr. Irfan Ali? Yes, sir. Thank you, sir. Sir, my question is that कि सर हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस इनके माइक के साथ इशू है। जी होस्ट प्लीज। थैंक यू सर। सर माय क्वेश्चन इज दैट सर हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस या अचीवमेंट्स होती हैं जिनका सर हमारे पास सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं होते, तो क्या वो हमें मेंशन करने चाहिए रिज्यूम में सर? अगर सर्टिफिकेट हैं तो ज़रूर मेंशन करें, अगर नहीं है तो अवॉइड करना बेहतर है, इसलिए कि वो आपसे उसका एविडेंस मांगेगा। और अगर एविडेंस आप नहीं देंगे तो आप ये जो जो एजुकेशन आप जो हासिल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेते हैं, आपको नेचुरल स्किल, सपोज करें कि आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइनिंग और ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी कर सकते हैं,
लेकिन इसके बावजूद आपको डिग्री की इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अपने जो एम्प्लॉयर है उसको कन्विंस कर सकें कि जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल की है। तो इसी तरह से अगर आपके पास किसी चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो उसको ज़रूर मेंशन करें। आई थिंक जिनके सवालात रह गए हैं वो आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको उसमें जवाब दे दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग। ओवर टू यू सौदा प्लीज। Mr. Mohammad Faizan, the branch counselor of IEEE Hamdard University Student Branch, would like to present you with a token of our appreciation. Assalamu alaikum, all of you. Uh, very high number of participants and a very good session conducted by Sir Sajjad Hussain. So here I want to express my sincere thanks, sincere vote of thanks to Sir Sajjad for such a wonderful session and such an informative session. Sorry to say, फैसल साहब ने जो भी अभी बात की थी कि इसमें क्या नई चीज़ है, मैं उनके लिए एक दो जुमलों में बस इतना कहना चाहूँगा कि एक तो इंसान हर वक्त सीखने की पोजीशन पे रहता है, सही है, गलतियाँ भी करता है और सीखता भी रहता है उम्र भर, जिंदगी भर। कोई भी इंसान कभी सीखने से ऐसा नहीं होता कि बस स्टॉप हो गया और बस मैंने सब कुछ सीख लिया, सही है। जब नंबर ऑफ सीवीज किसी भी कंपनीज में, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सही है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें स्टूडेंट्स कर जाते हैं, और ख़ासतौर पर बिल्कुल जो फ्रेश अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, सही है, उनको काफ़ी कुछ ज़रूरत होती है अपनी सीवीज को बेहतर से बेहतर करने के लिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट एक ये होता है कि सर हमारे पास तो अभी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास इस तरह के सेशंस काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी सीवी को प्रेजेंट करें इंडस्ट्रीज में कि उनके लिए जॉब के लिए आगे फ़ायदेमंद हो। So it's such a wonderful session. I again was thankful to Sir Sajjad Hussain for this session. मैं एक अपना बस इनपुट देना चाहूँगा। वैसे तो सर सज्जाद ने बहुत सारे आप लोगों को मुफीद मशवरे दिए और बहुत अच्छी चीज़ें समझाई। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं सही हूँ या गलत है, सर सज्जाद बताएंगे, कि मेरा मानना है कि एक चीज़ होती है गिटहब रिपोजिटरीज के नाम से। आई होप कि शायद कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ से, इस टर्म से वाकिफ हों। गिटहब से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स वाकिफ होंगे। गिटहब एक एक्चुअली फोरम है जहाँ पर स्टूडेंट्स या जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना काम शेयर करते हैं, सही है, अपना काम शेयर करते हैं और जो भी लोगों से या पब्लिक करते हैं इन शॉर्ट। तो वो एक फोरम है हमारा, तो उसमें एक रिपोजिटरीज बनाई जाती हैं। समहाउ ये चीज़ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि आप जस्ट लाइक आप सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर से आप छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये बड़े, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो प्रोग्रामिंग बेस्ड है या आपकी पिक्चर्स वाइज है या वीडियोस हैं या कुछ, कोशिश करें कि उसको स्टेप बाय स्टेप या जो भी आप सेमेस्टर्स के जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आप उसकी एक प्रॉपर वे में वीडियो बनाकर, सही है, या उसकी कुछ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाकर उसको अपने पास सेव करें, उसको गिटहब में डालें, पब्लिक करें और उसका लिंक अपनी सीवी में मेंशन करें। बट वो वीडियोस इस तरह की होनी चाहिए कि वो देखने वाली हो, या इस तरह से उसका बैकग्राउंड ऐसा अजीब सा ना हो कि आपका बुरा इम्पैक्ट क्रिएट हो, सही है। एक पब्लिक वीडियोस आप जब बना रहे होते हैं तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसका फ़ायदा मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप जब सीवी कहीं भी देते हैं तो जस्ट वन क्लिक पर आपका काम जो है, सही है, वो फौरी तौर पर सामने वाले को दिख जाता है, सही है। अगर वो ये चीज़ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, सही है। एक वेब डिज़ाइनिंग करते हैं छोटी सी,
छोटी सी कोई वेब बनाते हैं, सही है, आपने पूरी अपनी जो भी वर्कआउट है आपने वो उठाकर आपने गिटअप पे अपना पब्लिक कर दिया, तो वो शो हो जाएगा सामने। जो भी आपकी सीवी को देख रहे होंगे, शॉर्ट लिस्टेड कर रहे होंगे, उनके सामने आपके काफ़ी काम जो है वो एक क्लिक पर आपके शो हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, सही है, वो वीडियोस बनाकर शो करते हैं, वो अपनी कुछ खुद से जो ऑटोकैड की डिज़ाइन है या मैकेनिकल के बेस पे कोई डिज़ाइनिंग है, कुछ है, कोई प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइनिंग है, सही है, वो चीज़ आप पब्लिकली मेंशन करें उस चीज़ को कि मैंने ये किया है, सही है। इस तरह से आपकी जो स्किल्स हैं वो सिर्फ वर्ड्स की सूरत में नहीं आ रही होती सीवी पर, सही है, बल्कि वाकई में दिख रही होती है चीज़ों, ठीक है। तो बस ये मेरा एक मशवरा था कि नॉर्मली इस चीज़ की तरफ स्टूडेंट्स का किसी का भी रुझान नहीं होता, बट मैं फील करता हूँ कि ये चीज़ एक अच्छी होती है। आपने जस्ट एक लिंक्स उसके साथ गिटहब रिपोजिटरीज जो होती हैं किस तरीके से बनाते हैं, क्या करते हैं, इसकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस, तो ये वो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो कोई सीखना चाहे तो बाद में फिर मैं भी सिखा सकता हूँ, वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं। So I again want to thanks Mr. Sajjad Hussain for such a wonderful session. Over to you. On behalf of all the participants and our entire organizing body, we would like to thank you humbly for joining us today and giving us your time. Thank you so much. We would also like to thank our participants for joining us today and showing interest in our events. So thank you once again and goodbye for now. Allah Hafiz.